Dear friends, good morning, namaskar, adab, sat sri akal. You are welcome in part 18 of the series. Before we start, let us see what we have covered in part 17. We have discussed about Mudra loan and facilities added to Mudra loan under Atmanirbhar Bharat. Government has made a provision under Atmanirbhar Bharat for rupees 70,000 crores to boost housing sector and middle income group through extension of CLSS, means credit linked subsidy scheme for middle income group. Annual income between 6 to 18 lakh was operational from May 17, was extended up to 31st March, now again extended up to March 2021. The benefit of the scheme was enjoyed by 3.3 lakh middle class families up to 31st March 2020. By this extension of another 1 year, not only a benefit of another 2.5 lakh middle income families during 2021 and also will create jobs in construction sector. It will also stimulate demand for steel, cement, transport and other construction materials. Now I'll tell you दो तरह की स्कीम है, एक है MIG-1, एक है MIG-2. इनका बाइफर्केशन कैसे किया है? MIG-1 उन लोगों के लिए है जिनकी इनकम 6 लाख 1 रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक है, और मिडिल इनकम ग्रुप 2 वो हैं जिनकी आय 12 लाख 1 रुपए से लेकर 18 लाख रुपए तक है. और इसमें सरकार जो सब्सिडी देगी वो MIG-1 मिडिल इनकम ग्रुप 1 को 4% की देगी, मिडिल इनकम ग्रुप 2 को 3% की देगी. और इसमें जो मैक्सिमम लोन है वो MIG-1 के लिए 20 लाख का है, MIG-2 के लिए भी 20 लाख का है. और जो लोन की अमाउंट होगी, लोन का अमाउंट MIG-1 के लिए 9 लाख रुपए का है, जबकि MIG-2 के लिए ये 12 लाख रुपए का है. और जो ड्वेलिंग यूनिट है उसका एरिया है वो MIG-1 के लिए रहेगा 120 स्क्वायर मीटर और MIG-2 के लिए रहेगा 150 स्क्वायर मीटर. और जो इंटरेस्ट रेट NAV होगा, यानी वो जो टोटल एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होगा वो 9% से ऊपर नहीं हो सकता इन दोनों परिस्थिति में. NAV का मतलब कि जब लोन की इंस्टॉलमेंट बनती है तो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग लगता है, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी सब्सिडी लेने के बाद 9% से ऊपर नहीं जाएगा, अर्थात उससे कम ही रहेगा अगर उसे एनुअल बेसिस पर कंपाउंड किया जाए तो भी. इसका मतलब कि जो इफेक्टिव रेट है वो आपको 7 से 7.5% के बीच में मिलेगा. Migrant labor and urban poor faces challenge for getting houses in affordable rent. Government will launch a scheme under PMAY for migrant labor, urban poor to provide ease of living at affordable rent by converting government-funded housing in the cities into affordable rent housing complexes under PPP model through concessionaires, यानी private public partnership. Incentivizing manufacturing units, industries, institutions, associations to develop affordable renting housing complexes on their private land and operator, and incentivize state government agencies, central government organizations on the similar lines to develop affordable rent housing complexes and operate. Ministry has already issued the detailed guidelines in this regard. Affordable housing rent complexes, ARHCs, here shall mean a listed project with mix of at least 40 dwelling units and dormitories with 4 to 6 beds, with each bed have a carpet area of 10 square meter, single room up to 30 square meter, double room up to 60 square meter with living area, kitchen, toilet, bathroom and dormitory beds are up to 10 square meter carpet areas. Such double room cannot be more than
33% ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट इन द प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो प्रोजेक्ट पीपीपी में बनेगा उस पीपीपी की गाइडलाइंस ये है कि जो एंटायर प्रोजेक्ट होगा उसका 33% तो डबल बेडरूम होंगे और डॉर्मेट्री बेड रूम्स जो होंगे जिसमें सिंगल बेड रहता है वो 4 से 6 कम से कम होंगे और उनका एरिया करीब 10 स्क्वायर मीटर का रहेगा एक बेड का। और जो LIG फ्लैट बनेंगे लोअर इनकम ग्रुप के लिए वो 30 स्क्वायर मीटर में रहेंगे और जो MIG ग्रुप के लिए बनेंगे वो 60 स्क्वायर मीटर में रहेंगे फॉर रेंटल पर्पस। इनिशियल रेंट ऑफ ARHC इज फिक्स्ड बाय लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज लाइक दिल्ली में जिस तरह म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विल डिसाइड कि इसका किराया कितने रुपए महीना होगा और ये प्रोजेक्ट कम से कम 25 साल के लिए होगा। और इसमें जो रेंट है, रेंट कम से कम जो भी अवेलेबल उस परिस्थितियों को देख के, उस म्यूनिसिपल एरिया को देख के जो रेंट फिक्स किया गया है उसका एनुअल इंक्रीमेंट 8% से ज़्यादा नहीं होगा। अर्थात हर साल जो रेंट बढ़े, हर 2 साल बाद जो रेंट बढ़ेगा वो 8% बढ़ेगा, किंतु पूरे 5 साल का जो पीरियड है उसमें किसी भी परिस्थिति में ये 20% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक आदमी ने आज रेंट लिया और उसके 2 साल बाद उसका 8% बढ़ गया, उसके 2 साल बाद उसका दोबारा 8% बढ़ गया और उसके 2 साल बाद उसका 8% बढ़ना है, किंतु वो टोटल मिला के 24% हो गया, किंतु गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाई कि वो केवल 20% तक ही बढ़ सकता है, उससे ऊपर नहीं बढ़ सकता पूरे 5 साल के पीरियड में। और इसमें जो रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड कराएंगे वो है नेशनल हाउसिंग बैंक, जिन्होंने ऑलरेडी 10,000 करोड़ का प्रोविजन कर दिया। इन EWS कैटेगरी फैमिली इनकम शुड बी अप टू 3 लाख पर annum एंड LIG कैटेगरी 3 lakh to 6 lakh. This mission project will continue up to 2022. तो आपने देखा कि इसमें जो सिंगल बेड के लिए जो इकोनॉमिक वीकर ग्रुप है उनकी आमदनी 3 लाख रुपए साल से कम होनी चाहिए और जो लोअर इनकम ग्रुप है उनकी आमदनी 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए फॉर दीज रेंटल हाउसेस। हालांकि MIG और MIG 2 का हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि MIG 1 में 6 लाख से 12 लाख तक और MIG 2 में 12 लाख से 18 लाख तक। तो इस तरह 6 लाख से 18 लाख तक का पूरा ये कवर होता है। अब जिस भी ग्रुप में जब भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे सैंक्शन मिल जाएगा और जिस दिन उसे सैंक्शन मिला उसके 18 महीने के अंदर अंदर उसके प्रोजेक्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। In part 19, we will appear with new and latest issues related to MSME. I am also eagerly waiting for your comments, suggestions, questions to be taken up in the next part if given on Yudhishthir's Gyan Ganga. Thank you for watching. Please subscribe it free by using your email ID and push bell icon to get notifications immediately after release of next video that will come by next Friday अर्थात शुक्रवार। Stay home, stay safe. Thank you. Shukriya. Bye.